So now we will start with our second numerical analysis of a frame using a portal frame method. So in the portal frame method, as we consider the three assumptions, that is the contraflexural point of the beam is at the midspan. So contraflexural point means the moment is zero at that particular location. That is what we assume for the frame. Key the moment for our beam will come at the midspan, and then contraflexural points for the column we assume it for it again at the midspan. Okay, but this contraflexural points, when it will come at the midspan, when the load is on the structure is acting at the joints with the horizontal in horizontal direction. Okay, तो यहाँ horizontal direction में load act हो रहा है, and these, as I told you, these methods are applicable for the uh, earthquake load as well as for the wind load. ठीक है, तो dead load and live load का जो load आएगा, for that we have a other method, that is substitute frame method. तो फिर obviously यहाँ contraflexural point अपन हमेशा assume करते हैं. अगर लाइव लोड डेड लोड आता है, सो कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल पॉइंट विल गेट शिफ्टेड लाइक दिस. तो ये आपका बीम ऐसे बेंड होगा, मे बी यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि वर्टिकल लोड आपके बीम के आ जाएगा, and because of that your beam will bend like this, and because of this bending or because of the rigidity at the support, so the bending moment will be like this. So points will come at these two locations when the load is in the vertical direction. But here this method is suitable only for the earthquake load and the wind load. Only the horizontal forces are acting on the frame. So in that case, we have to go with the portal frame method. Okay. So according to that, we assume that the contraflexural points for the beam is at the midspan, as well as contraflexural points for the column is at the mid height on each story. हर एक स्टोरी के मिड हाइट पे आपको कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल पॉइंट कॉलम का कंसीडर करते हैं अपन एट द मिड हाइट. ठीक है, then in the third assumptions we assume that the shear force in the column at the shear force in the internal columns are twice than the external column. तो बीच में आप कॉलम के यहाँ शेयर फोर्स अपन 2 कंसीडर करते हैं, 2p, and the external column पे shear force अपन consider करते हैं only p. These are the three assumptions. By using that three assumptions, we will analyze the portal frame method. So in the first case, we will assume the first half, so top story. We will assume the half portion of the top story. ठीक है, ये आ जाएगा 1.5. ठीक है, horizontal load आ रहा है 25 kilonewton, so that we acted on the G support. ठीक है, तो ये horizontal load आ जाएगा. Now, as per our assumption that the internal column is having a twice shear force than the external column, so I consider it as a 2H, and the external column को वो आ जाएगा HH. ठीक है, तो फिर अपन इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे. सिंस ओनली वी हैव वन अननोन, h इज ओनली वन अननोन, तो फिर एक ही इक्वेशन सफिशिएंट है. सो वी यूज दिस समेशन ऑफ fx, और बाय यूजिंग दिस समेशन ऑफ fx वी विल गेट द value of h, and that h value is 6.25, and the direction we assume is correct because we got the plus answer for the h value, so the direction is towards the left hand side. Okay, so ये direction अपन ने यहाँ mark किया. Now we got the h value in this beam, so we will analyze this separately for each section from the contraflexural point. So now we will start it from the G point, from the topmost left hand point. तो यहाँ से अपन start करेंगे. So we will cut down the frame in this L shape from the contraflexural point. ठीक है, so अपना frame आ जाएगा B3G C2 with 25 force. ये B3 यहाँ C2 था, ये G वाला पॉइंट था, एंड 25 किलोन्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट. ठीक है, पहले फर्स्ट बेस ऑफ 4.5 लेंथ, सो उसका हाफ आ जाएगा 2.25, एंड द हाइट वाज 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 1.5. ठीक है, नाउ वी विल assume the
reactions at the in the portion of that sectional frame. तो यहाँ आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स जो अपन ने शियर फोर्स फाइंड आउट किया था. सो वी विल कीप इट एज इट इज. देन आई अज्यूम दिस डायरेक्शन इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन. तो ये वर्टिकल हो जाएगा, तो इसको मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर किया. ठीक है. सो ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा. ठीक है. देन आई अज्यूम डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. तो अभी उसको अपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स अननोन, क्योंकि ये वर्टिकल टू अननोन्स आ रहा है. सो वर्टिकल का इक्वेशन यूज करेंगे. सो वी विल नॉट गेट द वैल्यू. सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द समेशन ऑफ एफ एक्स बिकॉज ओनली one force in x direction is unknown. So we will use the summation of fx equation. So 25 is towards the right hand side, so we assume it is a plus. Then these two forces are acting towards the. Okay, so I admitted him. Thank you, Adiraj. You're welcome. Now we will start. Now we will get the value of bx is as a plus. So 18.75. So that means the assumed direction of this bx uh, is uh, um, is correct. So this will act towards the left hand side. ठीक है. तो ये अपना करेक्ट है क्योंकि अपन को प्लस साइन मिला है. So now we will use the summation of fy equation, and by using that summation of fy equation we got these two as a equal. C2y and B3y are equal. ठीक है. So to get the values of these two, we need to use a moment equation. So we will use a moment equation at C2 point. तो यहाँ C2 point के यहाँ moment equation use किया. ठीक है. So so obviously these two forces will create a zero moment at this location because these two forces are directly passing from the point where we are finding out the moment. तो ये दो forces का moment zero आ जाएगा. Now we will move towards the next point. So this point will create a clockwise moment. So for clockwise, we consider it as a minus. So 25 into 1.5. So minus 25 into 1.5 will be the moment created by this force. So for this next clockwise, so ये आ जाएगा minus sign. ठीक है. Now the moment created by this force B3x. So B3x value is with us. So that is 18.75, which is creating an anti-clockwise moment around point C2. So this will create a moment plus 18.75 into 1.5. Okay. So this is the moment created by this third force. Now we will simplify this and we will get the value of B3y as a minus 4.167. ओके. सो B3y को यहाँ मुझे माइनस मिला है. ठीक है. So because of this minus sign, I removed that sign and I made a direction of B3y. It is in the vertical direction. तो यहाँ मैंने vertical assume किया कि ये downward ना होके ये vertical direction पे act होगा, तो ये मेरा upward direction में आ जाएगा. ठीक है. तो अगर ये मेरा upward direction में आएगा, ओके, तो obviously this will come in the downward direction. या जो मुझे साइन मिला है तो वो मैं यहाँ इंसर्ट करूंगी. तो ऑब्वियसली ये C2y मेरा ये जो अपवर्ड एज्यूम किया था तो ये फिर माइनस आ जाएगा. ओके. क्योंकि मैं B3y की वैल्यू जो मुझे मिली थी वो ऐसे के वैसे पुट डाउन करूंगी. आई विल पुट दिस वैल्यू -4 ओवर हियर. ओके. दिस इज व्हाट द चेंज्ड साइन और एक्चुअल डायरेक्शन, बट at the assumptions, during the assumptions we assume the direction is in the downward direction, and from that assumption we got the minus sign. Okay. तो every time in calculation we will consider this one only. ठीक है. तो यही यहाँ आ जाएगी, तो उसके वजह से ये भी माइनस आ जाएगा. तो मीन्स अपवर्ड ना होके ये माइनस आ रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इन द downward direction. So we will change the sign and we will show it as a 4.16 is in the downward direction. ठीक है. So now we got the values of all the unknown. So now we will solve the next half of frame. So next half frame means ये वाला frame, H वाला, this frame we will solve. ठीक है.
तो ये आएगा फ्रॉम कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल पॉइंट B3, B4 एंड C4। तो ये वाला टी शेप का फ्रेम अपन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ के ऑलरेडी अपन को 2 फोर्सेस मिले हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स अपने पास है, ये वाले 2 फोर्स अननोन है और यहाँ का एक वर्टिकल फोर्स अननोन है। ठीक है, 3 अननोन फोर्सेस आर देयर। So now we will see how we have shown that forces. तो B3 के यहाँ आपको एक्चुअल फोर्सेस कैसे मिले हैं? So B3 के यहाँ आपको फोर्सेस मिला है, one is upward, B3y is upward, and this is towards the point, means towards the left hand side. ठीक है, upward and left hand side ऐसे मिले हैं. So this will be in the reverse directions over here. This will come in the downward and towards the right hand side. ठीक है, with the same amount. तो यहाँ मेरा वर्टिकल का वैल्यू क्या था, 4.16 था, तो ये 4.16 will act in the downward direction, and जो horizontal मेरा था 18.75, that I acted towards the right hand side with the 18.75 value. ठीक है, तो यहाँ के फोर्सेस मैंने as it is but with opposite sign I marked it over here. देन मेरा horizontal force जो मैंने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट किया था 2h, so h का वैल्यू मुझे मिला था 6.25. So when I will multiply it with 2, I will get 12.5. So 12.5 value I mentioned over here. Yes, I marked it over here. Okay. तो अभी अननोन कौन से है, बस these two unknowns. यहाँ जो कॉन्ट्राफ्लेक्सुरल पॉइंट मेरा B4 था, तो वहां मुझे अननोन्स आ जाएंगे। दिस B4 के यहाँ मुझे 2 अननोन्स मिल जाएंगे एंड C4 का वर्टिकल अननोन रह जाएगा। ठीक है, yes. So these B4x and B4y, these are two unknowns, and C 4y is the one more unknown. So these three are unknowns. तो इसमें मुझे 2 vertical unknowns मिल रहे हैं and एक ही horizontal unknown है. So I will use summation of fx. So directly I will get the value of this B4x. ठीक है, तो ये आ जाएगा plus 18 when we will use summation of fx. So this will be a plus 18.75 minus 12 and minus B4x. These three are the horizontal forces. तो उसको जब अपन simplify करेंगे, we will get the value of B4x is it as a with a plus sign 6.25. Okay, तो ये plus sign का force मुझे मिला यहाँ. So my assumed direction is correct, it is towards the left hand side. ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अभी 2 अननोन से, सो आई विल यूज मोमेंट इक्वेशन। सो फ्रॉम दैट मोमेंट इक्वेशन वन वैल्यू आई विल गेट। ठीक है, या फिर मैंने यहाँ एक इक्वेशन जनरेट किया पहले, अब मैंने समेशन ऑफ एफ वाई यूज किया। ठीक है, सो वी विल यूज समेशन ऑफ एफ वाई इक्वेशन। सो समेशन ऑफ एफ वाई में दिस विल बी इन द माइनस डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ये आ जाएगा -4.167। दिस विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा प्लस B4 into y, इट इज इन द प्लस डायरेक्शन, मींस अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ये भी प्लस है C4y. Okay, so I got one equation because in vertical direction I have a two unknowns. So to get one unknown, I need to find out the moment either over here or यहाँ. तो एक अननोन चला जाएगा फिर मेरा। सो मैंने फाइंड आउट किया है C4 के यहाँ। ठीक है, तो C4 के यहाँ पर मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस टू फोर्सेस विल, द मोमेंट फॉर दिस टू फोर्सेस विल बी 0. Now we will see for these two forces and these two forces. Okay, only the 4 forces will create the moment at this point. Okay, so now this 18.75 is create a clockwise moment at point C4. यहाँ पे ये clockwise move करेगा, so this will create a clockwise moment and the value is minus 18.75 into 1.5. So this is minus 18.75 into 1.5. Now this force will create a anti-clockwise moment for the at this point. Okay, तो ये anti-clockwise ऐसे move हो जाएगा क्योंकि इसका arrow का direction downward है, so this will move in the anti-clockwise direction. So this will create a anti-clockwise moment. So ये आ जाएगा plus 4.167 into 2.25. So this is plus 4.167 into 2.25. Now this force will create a, again anti-clockwise moment because it will move towards the upward direction. So this will again create a anti-clockwise moment at this point, C4 point के यहाँ। ठीक है, so ये आ जाएगा B4 into y into 3. B4y is the suffix, 4y is the suffix for this B,
So this you can say कि name of this force is B4y into 3 and it is anti-clockwise, तो ये प्लस आ जाएगा, so प्लस B4y into 3. ठीक है, अभी बचा है ये वाला फोर्स, तो दिस फोर्स विल क्रिएट अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एट दिस पॉइंट. ये पॉइंट के यहाँ ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा प्लस. बट B4 का वैल्यू ऑलरेडी वी फाउंड आउट, तो ये कितना आता है 6.25 into 1.5. तो ये आ जाएगा 6.25 into 1.5. Now we will simplify this whole equation and we will get the value of B4y it as a 3.125. Okay, so ये मिल जाएगा 3.125. That with the plus sign, that means the assumed direction is correct. ठीक है, B4y के लिए जो assumed direction था अपना vertical, so that is correct. तो ये vertical वैसे के वैसे आ जाएगा. Now we will put this value in this equation. तो आपको डायरेक्टली C4y का वैल्यू मिल जाएगा. तो ये मैंने शायद से नहीं किया. यस, आई फॉरगॉट इट. तो आपको यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. So now we found out all the values for this sectional frame. ठीक है. Now we will move towards the next half frame. तो next half frame आपका कौन सा है? We are just analyzing the first floor frame only. Okay. We are only over here. अपना next step फिर अपन को ground floor का ये frame analyze करना है. So we analyze this half left hand side frame, then we analyze this T frame. Now we will analyze this half right hand side frame for the top floor. ठीक है, तो ये वाला फ्रेम अपन एनालाइज करेंगे. सो ऑलरेडी वी फाउंड आउट द फोर्सेस ओवर हियर, सो दैट वी विल मार्क. तो यहाँ का हॉरिजॉन्टल फोर्स पता है, ओनली वर्टिकल इज अननोन. तो वर्टिकल आपको डायरेक्टली समेशन ऑफ Fy से मिल जाएगा. तो पहले अपन के फ्रेम पे ये वाले फोर्सेस मार्क कर लेते हैं. So to mark that forces, we need to go towards the previous frame which we analyzed. तो ये फ्रेम अपन को देखना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ B4y का जो वैल्यू था, so B4y value is plus 3.125. okay, and this is again plus 6.25. So here in the next frame, this will come in the downward direction and this will come is towards the right hand side. okay, तो ये नेक्स्ट फ्रेम में आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये आ गया राइट हैंड साइड पे. ओके, द वैल्यूज आर 3.125 एंड 6.25 अकॉर्डिंगली. और अपना यहाँ देन फॉर द बॉटम ऑन द कॉलम the horizontal shear force H value, we marked it over here, that H value is 6.25. so we left with only this value. तो अपन डायरेक्टली समेशन ऑफ Fy कर देंगे, तो ये डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये अपवर्ड हो जाएगा. तो ये वैसे के वैसे यहाँ मार्क कर दिया. ठीक है, तो अभी अपना फर्स्ट फ्लोर का फ्रेम एनालाइज हुआ है. ओके, सो वी एनालाइज दिस फर्स्ट फ्लोर फ्रेम. ये वाला फ्रेम अपन ने एनालाइज कर लिया. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्रेम. तो नेक्स्ट फ्रेम के यहाँ के मुझे हॉरिजॉन्टल एच फोर्सेस फाइंड आउट करने, जैसे अपन ने यहाँ फर्स्ट फ्रेम के लिए किया था बाय यूजिंग द थर्ड अजम्पशन. ओके, तो यहाँ भी अपन बॉटम फ्रेम के लिए ये कर लेंगे. ठीक है, बट बॉटम फ्रेम का करना है मींस ओनली वी विल नॉट गोइंग टू टेक अ बॉटम फ्रेम, वी विल गोइंग टू टेक अ फ्रेम फ्रॉम द टॉप अप टू दिस कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट. ओके, तो यहाँ तक अपन पूरा फ्रेम कंसिडर करेंगे. वी विल नॉट गोइंग टू कट इट फ्रॉम C2 as well as from C1. We will consider the whole top frame as up to the point where we are finding out the horizontal forces. ठीक है, तो यहाँ अपन ने वो मार्क किया है. ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मार्क किए हैं और पूरा ऊपर का सारा फ्रेम अपन ने कंसीडर किया है टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्सेस एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन. ओके, देन अभी क्या करेंगे फिर, ये सब उसको समेशन ऑफ Fx करके लेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ H इट एज 18.75. तो मुझे अभी यहाँ 18.75 मिला है. सो इंटरनल वैल्यू विल बी 18.75 into 2 आ जाएगा. ठीक है, तो वी विल एनालाइज दिस फ्रेम. तो अभी अपन ने ये वाला फ्रेम एनालाइज किया था, ये वाला टी शेप का फ्रेम एनालाइज किया था, के साइड का भी फ्रेम एनालाइज किया था. ना वी विल एनालाइज दिस हॉरिजॉन्टल टी फ्रेम. ओके, तो ये एफ वाला फ्रेम अपन एनालाइज करेंगे. सो दिस फ्रेम आई मार्क्ड इट ओवर हियर. तो ये आ जाएगा ये वाला फ्रेम. ठीक है, उसमें आ जाएगा ये 50 का फोर्स एज इट इज जो मैंने यहाँ मार्क किया है. ठीक है,
देन उसके बाद ये एच फोर्स आ जाएगा 18.75, वो बेसिकली वैसे यहाँ मार्क किया है। तो जितने भी मेरे पॉइंट्स है वहां पे दो फोर्सेस आ जाएंगे, एफ एक्स एफ वाई, एफ एक्स एफ वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा C1y इज अननोन, ओके, बट दिस एट दिस लोकेशन, ये पॉइंट पे मुझे फिर से ये दो अननोन्स मिल जाएंगे, ओके, B1y एंड B1x। सो ये B1 कहाँ से आया, मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट्स को नेमिंग कर दिया था। ठीक है, हाउ वी डिड द नेमिंग, फॉर द कॉलम वी मार्क इट एज a C1, C2, C3, C4, C5, C6, okay, and for the beams we mark it as a B1, B2, B3 and B4। ठीक है, तो वैसे अपन ने यहाँ मुझे B1 पॉइंट मिला था, तो मुझे वो दो अननोन्स मिल जाएगी। तो और ऊपर के ये जो दो अननोन्स है दैट आई विल गेट फ्रॉम द G फ्रेम, ओके। तो ये C2 के यहाँ के अननोन मुझे G2 फ्रेम से मिलेंगे, वो दो फोर्स को मैं ये फ्रेम पे मार्क कर लूंगी। तो C2 के यहाँ के फोर्सेस मेरे कौन से हैं, से C2 के यहाँ मुझे मिल रहा है left hand horizontal force is towards the left hand side, 6.25 is the value, and C2y is acting in the downward direction 4.16, okay। तो ये आ जाएगा, horizontal will be in the right hand side and C2 will be in the vertical direction, will act on the next frame। So this will be towards the right hand side and this is in the vertical, it is in the vertically upward direction on the next frame। तो ये अपना next frame पे यहाँ ऐसे एक्ट होंगे। तो ये भी फोर्स मार्क कर लिए, ओके, और सारे अननोन्स को मार्क किए। सो फॉर दिस फ्रेम टोटल आई हैव 3 अननोन्स। फिर से मेरे तीन अननोन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो तीन अननोन सॉल्व करने के लिए फिर मेरे पास कौन सा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड मोमेंट। तो मैंने ये तीन इक्वेशन यूज किया। नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट दिस 3 इक्वेशन। तो आप ये देख लो, ये तीन इक्वेशन मैंने यहाँ यूज किया है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई एंड मोमेंट एट पॉइंट C1y। ठीक है, ये सब यूज करती हूँ तो मुझे ये तीनों भी अननोन्स यहाँ मिल जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली मैंने उनके डायरेक्शन भी यहाँ मार्क कर लिया है तीनों अननोन्स का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, ये फ्रेम होने के बाद फिर मैंने मिडल का फ्रेम सॉल्व किया। इस मिडल फ्रेम आई सॉल्व, ओके। सो ये मिडल फ्रेम सॉल्व किया तो ऊपर के फोर्सेस ऑलरेडी अपन ने फाइंड आउट किए थे इन द एच फ्रेम, सो दैट टू फोर्सेस आई मार्क्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन दिस प्लस साइन फ्रेम, ओके। देन यहाँ एफ फोर्स के अभी राइट नाउ यहाँ के दो फोर्सेस फाइंड आउट किए थे, दैट आई आल्सो मार्क इट ओवर हियर। सो यहाँ दो अननोन्स रह जाएंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल इज नॉट नोन टू अस, सो दैट वर्टिकल फोर्स और यहाँ के दो वैसे तीन अननोन्स ये मेरे ई फ्रेम पे आ जाएंगे। सो दैट ई फ्रेम आई मार्क इट ओवर हियर विद ऑल द फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सब फोर्सेस को मार्क कर लिया इन द अपोजिट डायरेक्शन, whatever the forces which we got in the previous substitute frame or previous frames, so that forces we marked it in the next frame with the opposite direction, okay। so वो सारे फोर्सेस को मार्क कर लिया बट अपोजिट डायरेक्शन में मार्क किया एट रिस्पेक्टिव लोकेशंस। तो ये होने के बाद फिर क्या करेंगे, तीन अननोन से अपने ये फ्रेम पे भी तीन अननोन है, सो वी सॉल्व दैट फ्रेम एंड वी फाउंड आउट दैट 3 अननोन। समेशन ऑफ एफ एक्स किया तो ये हॉरिजॉन्टल का वैल्यू मुझे मिला। देन मैंने मोमेंट एट सी फाइंड आउट किया तो मुझे B2y मींस दिस ये वाला इसका वैल्यू मिला मुझे 17.18। एंड उसके बाद मैंने समेशन ऑफ एफ वाई किया डायरेक्टली, तो वो मैंने ये वाला मार्क कर लिया। ठीक है, so I found out all the values in this frame, then we will move towards the next frame। is it okay that I have not explained it thoroughly for this frame? चलेगा ना, नो प्रॉब्लम ना, क्योंकि ये सारा आपका मैकेनिक्स का ही आता है। Yes, ma'am. थैंक यू। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्रेम। तो अभी मिडल का एच फ्रेम एनालाइज किया, नाउ वी विल एनालाइज द के फ्रेम। तो ये अपन सॉरी डी फ्रेम, तो ये टी हॉरिजॉन्टल टी वाला जो है वो डी फ्रेम को एनालाइज करेंगे। ठीक है, जिसपे C5 C6 C5 एंड B2 के कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट आते हैं, वहां तक का अपन फ्रेम एनालाइज करेंगे। दिस के नहीं था शायद से, उसका नाम क्या था, डी था ना, लेट इट बी। तो दिस फ्रेम वी विल एनालाइज, जिसमें ऊपर के जो फ्रेम के जो फोर्सेस है दैट वी मार्क इट ओवर
देन प्रीवियस फ्रेम के जो फोर्सेस थे मीन्स ये वाले फोर्सेस, तो वो अपन ने मार्क कर लिए। एक +12 था एंड दूसरा 17 था अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ आ रहा है 17 पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओवर हियर। और एक जो प्लस था वो ये डायरेक्शन में चला गया टुवर्ड्स दिस 12.5 ऐसे आ गया। ठीक है, प्रीवियस फ्रेम के भी मार्क कर लिए। देन यहाँ का हॉरिजॉन्टल फोर्स अपना एच वैल्यू था, एच वैल्यू 18.75 था, सो दैट 18.75 में वी मार्क्ड इट ओवर हियर, सो ओनली अननोन इज दिस वन। तो ये अननोन अपन फाइंड आउट करेंगे बाय फाइंडिंग आउट समेशन ऑफ F1। नाउ वी विल फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस फ्रेम। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम। तो अभी अपन ने सब जगह पे अननोन्स फाइंड आउट कर लिए। नाउ वी विल स्टार्ट इट विद दिस फर्स्ट फ्रेम। ये वाले फर्स्ट फ्रेम से अपन एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, नाउ दिस फोर्स इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये फोर्स मेरा है यहाँ पॉइंट पे एंटी क्लॉक नॉट एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, it is creating a clockwise moment, okay, at this point। ये पॉइंट का अपन ने नेम क्या दिया है, so we named it as a G point। तो G point के यहाँ पे this force will create a clockwise moment like this, ऐसे वो मूव होता है। okay, this create a clockwise moment, so to balance that clockwise moment the anti-clockwise moment will generate at this point। ऐसे आपका anti-clockwise नेचर का मोमेंट यहाँ जनरेट होगा ये पॉइंट के ऊपर। ठीक है, and the value of that moment is 6.25 into 1.5। तो 6.25 into 1.5 is 9.37। ठीक है, सो 9.37 का मोमेंट यहाँ जनरेट होगा फ्रेम के ऊपर। ठीक है, देखो आई विल शो इट ओवर हियर। तो यहाँ मेरा नीचे का क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा था, तो टू बैलेंस दैट ऊपर से मेरा 9.4 का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, 9.5 का, और यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा फ्लेक्चरल पॉइंट था। सो कॉन्ट्रा फ्लेक्चरल पॉइंट के यहाँ यस कॉन्ट्रा फ्लेक्चरल पॉइंट के यहाँ क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट हो रहा था। सो टू बैलेंस दैट तो एंटी क्लॉकवाइज हैज जनरेटेड ओवर हियर। तो अभी मेरा हाफ ही कॉलम हुआ है। So for half a column, next half column means G to C2 तक ही हुआ है। C2F का मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे ये F फ्रेम देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो F फ्रेम में देखो ये F फ्रेम में now this force is creating a clockwise moment। उतना ही सेम अमाउंट है 6.25 into 1.5 मीन्स 9.37 का मोमेंट जनरेट कर रहा है क्लॉकवाइज। सो टू बैलेंस दैट क्लॉकवाइज मोमेंट आई नीड टू जनरेट द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ओवर हियर। तो ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट यहाँ जनरेट होगा। ठीक है, सो तो वो मैं यहाँ मार्क कर लूंगी मेरे यहाँ पे। तो ये एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट मेरा यहाँ जनरेट होगा। ठीक है, so now this moment is trying to push the column in the internal direction, so the internal will come at that because of this moment my column will move like this। okay, so internal column will come in a tensile force। तो अपन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टेंशन साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ मुझे टेंशन साइड में ये 9.37 था, तो मैंने उसको राउंड अप करके 9.4 लिख दिया। सो यहाँ 9.4 आ जाएगा, और यहाँ पे टेंशन है तो यहाँ 9.4 आ जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड हाउ वी मार्क दिस मोमेंट डायग्राम फॉर दिस वर्टिकल कॉलम। ये समझ में आया मॅम? हाँ? मॅम फक्त ते हॉरिझॉन्टल फोर्सेसच कन्सिडर करायचे ना? एक सेकेंड में फिर से वापस बताती हूँ। यस, दिस वन। ठीक है, नाउ देख अपन ने यह एज्यूम किया था कि यह कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट है। दिस इज माय कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट। ओके, सो यह कॉन्ट्राफ्लेक्चरल पॉइंट है मींस यह मोमेंट जीरो जनरेट होगा, ये अपन ने एज्यूम किया था। ठीक है, तो यहाँ तो सी नीचे का जो अपना कॉलम है, ओके, तो ये जो फोर्स मोमेंट क्रिएट कर रहा है
ये जो फोर्स मोमेंट क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 6.25, so that moment should equally get balanced by the bottom force, then only this contraflexural point will act with the zero moment. ठीक है, तो मीन्स ये फोर्स की वजह से यहाँ जो कुछ भी मोमेंट जनरेट होगा, मीन्स यहाँ पे कितना 6 इंटू 1.5 मीन्स 9.4 का मोमेंट जनरेट होता है, तो 9.4 का क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ जनरेट होता है, तो उसके लिए उसको बैलेंस करने के लिए अपन ने एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ दिखा दिया, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज नेचर का। ओके, देन सेम वे ये जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ये डायरेक्शन पे भी अपना मोमेंट जनरेट होगा, सो दैट मोमेंट इज लाइक दिस। ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन मोमेंट विल क्रिएट द जीरो मोमेंट एट दिस सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने हॉरिजॉन्टल फोर्स ही कंसीडर किया है, ठीक है, क्योंकि ये लोकेशन पे ये वर्टिकल फोर्स मोमेंट नहीं क्रिएट करेगा, द ओनली दिस horizontal force will create the moment on this column. Okay, ma'am. Understood? Yes. Okay. नेक्स्ट अभी कॉलम का देख लिया, अभी रैंडमली बीच में कहीं भी एक मोमेंट अपन देख लेते हैं, ठीक है, विल नॉट सी दी होल, सो नाउ रैंडमली अपन यहाँ का ये कॉलम का मोमेंट देख लेते फॉर दिस पॉइंट। ओके, सो यहाँ अपना आ रहा है कुछ तो 84.4 और यहाँ भी 84 पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सो 84.4 का अपन पहले मोमेंट देखेंगे। सो दिस पॉइंट इज मिडल पॉइंट इज ई पॉइंट, तो ई पॉइंट का ये वाला अपन फ्रेम देखेंगे, E2C3 का फ्रेम अपन चेक करेंगे, E2C3, सो E2C3 E2C3 का। ओके, सो नाउ फॉर दिस कॉलम दिस फोर्स विल क्रिएट अ मोमेंट। ओके, तो ये कितना आएगा 37.5 into 2.25 and that is 84.37, तो मैंने 84.4 लिखा है उसको, ठीक है। So this force will create a moment of 84.4 and which is of a clockwise nature, ये ऐसे clockwise मूव हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। ओके, और उसका वैल्यू कितना होगा 84.4, ठीक है। तो ये जो 84.4 मोमेंट है जो एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, सो ऑब्वियसली उसको बैलेंस करने के लिए मेरे नीचे के कॉलम पे एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन का, क्योंकि ये फोर्स मैंने नीचे के कॉलम पे अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है 37, नीचे के कॉलम पे 37.5 ऐसे दिखाया है, सो दिस बॉटम कॉलम पे दिस विल क्रिएट अ क्लॉकवाइज नेचर, तो ये नाउ इट इज विजिबल, ठीक है। सो नाउ दिस मोमेंट्स विल क्रिएट अ this will bend the column like this, तो वैसे बेंड करेंगे तो इंटरनल डायरेक्शन पे मोमेंट आ जाएगा और यहाँ बॉटम पे एक्सटर्नल डायरेक्शन पे मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो मोमेंट अपना वैल्यू क्या था 84.37 था, तो जिसको 84.4 किया है, सो दैट वी विल सी ऑन द कॉलम, तो ये आ जाएगा 84.404 लाइक दिस। ओके, तो वैसे टेंशन साइड पे यहाँ टेंशन साइड था, तो यहाँ अपन ने इंटरनल डायरेक्शन पे वो मोमेंट मार्क कर दिया और यहाँ एक्सटर्नल डायरेक्शन पे यहाँ मोमेंट मार्क कर दिया, ठीक है। So you understand how this moment has generated on the column? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we will find out the moment for this beam. ओके, तो ये ईडी बीम के लिए अपन मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो तो ईडी बीम के लिए वी विल कंसीडर दिस फ्रेम एज वेल एज दिस फ्रेम। ओके, तो पहले ये सी वाला अपन सॉरी ई वाला प्लस फ्रेम अपन चेक करते B2 के यहाँ पे, तो ई वाला प्लस फ्रेम, so we will see this frame at B2 location. Okay, so this B2 is the value of this B2 is 17.18, which is acting in the upward direction, and this 17.18 into 3 is creating an anti-clockwise moment at point E.
ओके, तो ये 17.18 आ जाएगा, 17.18 into 3, द मोमेंट इज 51.54 आती है, ठीक है। सो ये एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज के मोमेंट के लिए ये यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होगा। सो टू बैलेंस दैट वन आई नीड टू जनरेट द क्लॉकवाइज मोमेंट ओवर हियर इन दिस पैटर्न, ठीक है। एरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यस, द एरो इज विजिबल नाउ। सो ये मेरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रहा था, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट किया, ठीक है। देन फॉर द नेक्स्ट फ्रेम एंड द वैल्यू इज 51 आ रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ भी नेक्स्ट फ्रेम पे, तो ये वाले नेक्स्ट फ्रेम पे, ठीक है, दिस इज क्रिएटिंग अ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो टू बैलेंस दैट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आई नीड टू जनरेट द क्लॉकवाइज मोमेंट ओवर हियर, ठीक है। तो मैंने ये क्लॉकवाइज जनरेट किया, तो मेरे अभी ये बीम पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज है एंड राइट हैंड साइड पे भी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है, तो मेरा ये बीम आ रहा है वैसे, यहाँ पे भी ये क्लॉकवाइज है, सो आई विल मार्क दैट क्लॉकवाइज ओवर हियर, ओके। और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, I will mark that clockwise over here. Okay, आपको वो दिख ही नहीं रहा है, just we will wait for 2, हाँ yes। तो मैंने ये बीम को मार्क किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्लॉकवाइज एरो दिखाया है, राइट हैंड साइड पे भी क्लॉकवाइज एरो दिखाया है, ठीक है। नाउ दिस फोर्स, दिस मोमेंट will try to push my beam in the downward direction, so my beam will bend like this। तो ऐसे मेरा बीम बेंड होगा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये अपेयर होगा स्क्रीन पे। The bending pattern is visible on your screen. Yes, ma'am. ओके, आपको दिख रहा है, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। यस, इट इज विजिबल नाउ। So this beam will bend like this, so that means bottom portion will come in the tension and the top right hand portion will come in the tension, and value is 51.54। so this one, bottom portion is in tension and top portion is in tension, so the bending moment diagram for this beam is like this, ठीक है। तो ये आ जाएगा ये बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। So everyone understood how to find out the moment for each beam and how to find out the moment for each column?